dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, let's start a new chapter of class 4th, which is chapter number 11, beaks and claws. And I hope you all are aware with both these terms. So beaks and claws, who are having these beaks and claws? So we all know the flying creatures of our nature. Okay, हमारे nature में जो flying creatures हैं, जिनको birds कहा जाता है, उनके पास ये body parts होते हैं which are known as beaks and claws. Okay, चल. So let's start the chapter. See. So birds क्या है? Fascinating creatures हैं जो all around the world easily find किए जाती हैं. Various shapes, sizes and colors की birds होती हैं. Birds के पास कुछ unique features हैं like beaks and claws जो उनको survive करने में and उनके habitats में thrive करने में help करते हैं. So these are the adaptations allow birds to eat, hunt and protect themselves. So ये जो beaks हैं, claws हैं, ये nature ने इनको as an adaptation provide करा है and यही adaptation के through birds eat कर पाती है, hunt कर पाती हैं and खुद को protect कर पाती हैं. So birds के beaks and claws specially designed होते हैं उनके lifestyle के according. हर एक bird के beaks and claws same नहीं होते हैं, उनके lifestyle के according वो different होते हैं. Example given है, some birds have long thin beaks to sip nectar. कुछ birds के जो beaks हैं काफ़ी long and thin होती हैं so that वो easy nectar को sip कर सकें. फिर कुछ birds की जो beaks हैं strong and curved होती हैं so that वो nuts को crack कर सकें. ठीक है, चलो. Similarly, birds have different types of claws suited for perching, hunting or climbing. इसी तरीके से हर एक bird के जो claws है वो भी different होते हैं उनके perching, hunting या climbing के suitability के according. Birds are warm-blooded animals with feathers, wings and beaks. So birds क्या है? Warm-blooded animals हैं जिनके पास feathers, wings and beaks होते हैं. So ज़्यादातर birds आपकी fly कर सकती हैं लेकिन कुछ ऐसी birds हैं which are flightless. Example ostrich. पेंगुइन ये आपकी फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये काफ़ी बड़ी एंड हैवी होती हैं. बर्ड्स ले एग्स एंड यूजुअली बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग सेफ. तो बर्ड्स क्या एग्स ले करती हैं. एग्स ले करने के लिए वो पहले नेस्ट बनाती हैं जिसमें वो अपने एग्स को सेफली रखती हैं. ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दे सिंग विच कैन बी हर्ड इन गार्डन, फॉरेस्ट एंड इवन सिटीज. बर्ड्स हैव एक्सीलेंट आई साइट. बर्ड्स की जो आई साइट है बहुत अच्छी होती है जो उनको फूड फाइंड करने के लिए और अपने प्रेडेटर्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है. उसके साथ दे ऑल्सो हैव अ यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम. बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काफ़ी यूनिक होता है जो उनको अलाउ करता है फ्लाई करने में. ठीक है, बहुत ऊंचाई तक, हाई ऑल्टीट्यूड तक फ्लाई करने में विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके वो ईजिली फ्लाई कर पाती हैं बिकॉज उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत यूनिक होता है. Birds play an important role in nature by pollinating flowers and spreading seeds. Birds हमारे nature में भी एक बहुत important role play करती हैं because flowers को pollinate करने में, seeds को spread करने में they are very important. Next we come to what types of beaks and their functions. So as I told you, every bird has different beak, okay, type of beak. So we have to discuss about them only. So birds have different types of beak, each designed for specific purpose. So हर एक beak एक specific purpose के लिए design है. So shape and size जो bird की beak है वो depend करती है कि वो bird क्या खाती है, what does it eat. उसी basis पर उस bird की जो beak की shape होगी, design होगी, वो बनती है. So कुछ common types of beaks हैं. Number one is conical beak. You can see this is a type of conical बीक. सो ये बीक आपकी शॉर्ट होती हैं, कोन शेप्ड होती हैं एंड सीड्स को, बीज को क्रैक करने के लिए परफेक्ट होती हैं. लाइक फिंचेस. फिंचेस एक बर्ड है जिसके पास कॉनिकल बीक होती है लाइक दिस. यू कैन सी ये कॉनिकल शेप है, कर्व्ड शेप है. नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक. यू कैन सी दिस इज कर्व, जो नीचे इस तरीके से कर्व्ड होती है. लाइक पैरट. पैरट एक ऐसी बर्ड है जिसकी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है विच हेल्प देम टू ब्रेक ओपन नट्स एंड सीड्स, नट्स को ब्रेक करने में, ओपन करने में ऐसी जो बीक्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड थिन बीक्स. हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड एक ऐसी बर्ड है जिसकी लॉन्ग थिन बीक होती है जिसके थ्रू वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सिप कर सकते हैं. कैन सी ये क्या है, लॉन्ग है एंड थिन है सो दैट फ्लावर के अंदर इजिली नेक्टर को सक किया जा सके. नेक्स्ट इज फ्लैट एंड वाइड बीक. डक्स. डक्स की फ्लैट एंड वाइड बीक होती है जो उनको वाटर में स्कूप अप करने में और छोटे छोटे फिशेस को कैच करने में हेल्प करती है. यू कैन सी दिस इज फ्लैट एंड वाइड बीक. नेक्स्ट इज हुक्ड बीक. सो जो बर्ड्स प्रे यानी कि शिकार करती हैं लाइक ईगल्स, इनकी हुक्ड बीक्स होती हैं सो दैट ये अपने प्रे के फ्लैश को ईजिली टीयर कर सके.
Okay, you can see this is hooked page. Now next we come to different clause and the uses. अब हम different clause के बारे में discuss करेंगे. I told you birds के different types के clause भी होते हैं जो उनको various activities में like hunting, climbing, perching इन सब में help करते हैं. So number one is perching clocks. So ये clock design होते हैं आपके उन birds के लिए जो usually branches पे रहती हैं, टहनियों पे रहती हैं, so that वो अपनी उन branches को easily ऐसे hold कर सके. ऐसे clause को perching कहा जाता है. Perching clause song birds के usually आपके perching clause होते हैं. You can see this is the perching clause. Next is climbing clause. So woodpeckers जो birds हैं उनके strong clause होते हैं जो easily ट्रीज पे उनको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. यू कैन सी दीज आर क्लाइंबिंग क्लॉज. नेक्स्ट इज ग्रास्पिंग क्लॉज. रैप्टर्स लाइक ईगल्स एंड हॉक जो बर्ड्स हैं उनके शार्प क्लॉज होते हैं सो दैट ये अपने प्रे को इजिली कैच कर सके एंड होल्ड कर सके. दिस इज ग्रास्पिंग क्लॉज. ओके, चलो नेक्स्ट इज स्विमिंग क्लॉज. सो डक्स और कुछ ऐसी वाटर बर्ड्स यानी कि पानी में रहने वाली जो बर्ड्स हैं उनके वेब्ड, जैसे वेब होता है ना स्पाइडर का वेब, उस तरीके के क्लॉज होते हैं जो उनको स्विमिंग पर्पस में हेल्प करते हैं. यू कैन सी दीज आर स्विमिंग क्लॉज. नेक्स्ट इज रनिंग क्लॉज. ऑस्ट्रिचेस आई टोल्ड यू दे कैन फ्लाई, दे हैव टू जस्ट रन ऑन द ग्राउंड. सो ऑस्ट्रिचेस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, क्लॉज होते हैं जो उन्हें रनिंग में हेल्प करते हैं. यू कैन सी दिस इज द रनिंग क्लॉ. ओके, चलो. So we have discussed the different types of beaks and claws and their uses also. And now we come to adaptations in birds. So birds में क्या different adaptations है? So birds के क्या होते हैं? Amazing adaptations हैं जो उनको different environment में survive करने में help करते हैं. यानी adaptations के अंदर उनके beaks, claws, feather, behavior ये सभी उनके adaptations में ही included है. ओके, एग्जाम्पल बर्ड्स लिव इन कोल्ड एरिया. अब वो बर्ड्स जो कोल्ड एरियाज में रहती है, ठंडी जगहों पर रहती हैं, उनके थिक फेदर्स है. क्यों? सो दैट दे आर एबल टू कीप देयर बॉडी वार्म. ये जो फेदर्स हैं, थिक फेदर्स, उनको उस कोल्ड एरिया में वार्म रखने में हेल्प करते हैं. एंड वाइल बर्ड्स इन द डेजर्ट हैव स्पेशल वेज टू स्टे कूल. और जबकि वो बर्ड्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनके पास अपने कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनकी बॉडी को कूल रखने के लिए. Adaptations also help birds to find food and protect themselves from predators. Adaptation birds को उनके food find करने के लिए और उनको खुद के predators से protect करने में भी help करते हैं. Birds of prey have keen eyesight and sharp claws for hunting. जो birds prey यानी कि शिकार करती हैं उनकी जो eyesight है बहुत ज़्यादा sharp है, उनके जो claws होते हैं वो भी बहुत sharp होते हैं so that they can easily hunt. लेकिन जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो कैमोफ्लेज यूज़ करती हैं खुद को अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड करने के लिए. एंड अडेप्टेशंस हैं विच मेक बर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. नेक्स्ट वी कम टू बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट. अब हर एक बर्ड और उसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं. सो बर्ड्स वेराइटी ऑफ हैबिटेट में रहती हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, डेजर्ट टू वेटलैंड्स एंड अर्बन एरिया. अब हर एक हैबिटेट डिफरेंट फूड सोर्सेज एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स को. सो अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन बर्ड्स इन द हैबिटेट्स हेल्प अस टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज एनवायरनमेंट. सो अब हम हर एक बर्ड के या फिर जो ये शेल्टर्स हैं जहाँ पे बर्ड्स यूजुअली रहती हैं, अडेप्ट करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द नंबर वन इज़ फॉरेस्ट. सो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की लाइक वुडपेकर, आउल, जिनका होम क्या है? फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट उनको प्लेंटी ऑफ ट्रीज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ईजिली अपने नेस्ट बना सकते हैं एंड फूड सर्च कर सकती हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट. सो लाइक रोड रनर्स, ये ऐसी बर्ड हैं जो हॉट और ड्राई कंडीशंस जो है डेजर्ट की वहाँ अडाप्ट हो चुकी हैं. वो फूड एंड वाटर वहाँ कुछ प्लेसेस से फाइंड कर लेती हैं. नेक्स्ट इज वेटलैंड. वेटलैंड में डक्स, हेरॉन्स एंड बहुत सारी ऐसी वाटर बर्ड्स हैं जो वेटलैंड्स में इसे थ्राइव कर पाती हैं. ये एरिया फूड में काफ़ी रिच होते हैं, जैसे कि फिशेस, इंसेक्ट्स वहाँ इजीली पानी में इन्हें मिल जाती हैं. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में हॉक एंड स्पैरो जैसी बर्ड्स रहती हैं. ये काफ़ी ओपन स्पेसिस हैं जो प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड सीड्स इन्हें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज अर्बन एरिया. ओके, अर्बन एरिया में पिजन, स्पैरो और बहुत सारी बर्ड्स हैं जो सिटी लाइफ में अडाप्ट हो चुकी हैं. इन्हें फूड एंड शेल्टर कहाँ मिलता है? बिल्डिंग्स में, पार्क्स में. वहाँ इजीली अपने शेल्टर बना लेती हैं.
Next we come to bird conservation. So bird conservation क्या है? It is important to ensure that bird species do not become extinct. तो bird का conservation भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि bird की species क्या ना हो जाए, हमारे नेचर में extinct ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी birds हैं जो endangered हैं, यानी कि they are on a peak to become extinct. Okay, so many birds are threatened by habitat loss. So बहुत सारी ऐसी birds हैं जो threatened है, किसके लिए? हैबिटेट लॉस के लिए, बिकॉज हैबिटेट का लॉस होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से. सो कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. तो कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स ज़रूरी हैं इन बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, जिसमें कि आपका प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स यानी कि उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, ओके, creating bird friendly spaces and raising awareness about the importance of birds. So these are some conservation efforts which we should take to conserve the birds. Organizations and communities work together to protect bird habitats and promote conservation practices. So बहुत सारी organizations हैं, communities हैं जो एक साथ ही मिलकर काम करती हैं bird habitats को protect करने में and birds को conserve करने में. कुछ सिंपल एक्शंस हैं जैसे कि प्लांटिंग नेटिव ट्रीज को प्लांट करना, प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस करना, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं. बाय केयरिंग फॉर बर्ड्स वी हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम, एंड बर्ड्स की केयर करके हम अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को भी मेंटेन रख सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ बर्ड्स कम्युनिकेट. अब ये बर्ड्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं? So birds use various ways to communicate with each other, including songs, calls and body language. So birds different ways का use करती हैं एक दूसरे के साथ communicate करने के लिए, जैसे कि songs, they sing song, वो call करते हैं एक दूसरे को अपनी body languages के through, ठीक है. So birds के जो songs हैं वो काफ़ी use किए जाते हैं mates को attract करने के लिए and established territory. लेकिन जो calls होती हैं वो एक danger का warn होती हैं और पूरे फ्लॉक को हेल्प करती हैं एक साथ ही रखने में. ईच बर्ड स्पीशीज हैज इट्स ओन यूनिक सॉन्ग्स एंड कॉल. हर एक बर्ड स्पीशीज के अपने खुद के यूनिक सॉन्ग एंड कॉल्स होते हैं. सो लर्निंग टू रिकॉग्नाइज दीज सॉन्ग्स कैन बी अ फन वे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट बर्ड्स एंड देयर बिहेवियर. बर्ड ऑल्सो यूज देयर फेदर्स टू कम्युनिकेट. बर्ड्स अपने फेदर्स का भी यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि पुटिंग अप टू लुक लार्जर और स्प्रेडिंग देयर विंग्स टू शो ऑफ देयर कलर्स. वो क्या करती हैं, एक साथ ही सब सारे फेदर्स को एक साथ ही रखती हैं खुद को लार्ज दिखाने के लिए, या फिर अपने विंग्स को स्प्रेड करती हैं अपने कलर्स को शो ऑफ करने के लिए. इस तरीके से दे यूज देयर फेदर्स एंड विंग्स आल्सो टू कम्युनिकेट. ओके, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर टुडे. We have discussed many features about the birds today, and I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.